Hello. Now talk about on adrenergic part two, non-catecholamines, which can be taken as orally and through IV drop and topical also. And now first is vasopressor, which increase your BP and it helps in the treatment of hypertension. For like drugs we can use is phenylephrine, which is a drug of choice for treatment of hypertension in spinal anesthesia, then also in the treatment of aortic dissections. It acts on the specific alpha 1 receptors, and also we can give in the midorine, which is a drug of choice for postural hypotension. Ephedrine and act on both alpha and beta receptors, drug of choice for hypotension in pregnancy. And a mediatic, second mediatic used in fundoscopy, drug of choice is for phenylephrine eye drops, and which is also used as drug of choice for fundoscopy in adults. And it acts on alpha 1 radical muscles on eye of iris, which activate metiasis. Atropine block M3 receptors, paralysis circular muscles, passive metiasis, and a drug of choice for fundoscopy in children's 1% ointment atropine. थर्ड नेजल decongestants, है ना, ये क्या करते हैं, वैसो कंस्ट्रिक्शन इन नोज, कंजेशन, मतलब डायलेट बीपी, विच here you can see rhinorrhea can happen, है ना, from the bloodstream plasma. Treatment rhinorrhea में काम आते हैं nasal. It can be given in the nasal drop form and or orally. Like a nasal drop, we can use oxymetazoline and also known as otrivine, xylometazoline and nefazoline and phenylephrine, and which and can be given orally form like ephedrine, pseudoephedrine, and phenylephrine. Chronic use, long term use of nasal decongestion nasal ischemia cause करता है, like एट्रोपिक राइनाइटिस एंड एनोस्मिया. एंड अगर हम सडन स्टॉपेज करा दें नेजल डिकंजेशन की, तो रिबाउंड वैसोडाइलेशन होता है, रिबाउंड राइनोरिया भी कॉज करता है, आल्सो नोन एज राइनाइटिस मेडिकेमेंटोसा. Fourth, bronchodilators stimulates B2 receptors, treatment asthma. Like drugs are salbutamol, formoterol, and terbutaline. है ना, टोकोलाइटिक, फिफ्थ टोकोलाइटिक्स रिलैक्स यूट्रस एंड डिले लेबर यूज्ड इन द प्री मेच्योर डिलीवरीज. बीटा 2 एगोनिस्ट होता है, लाइक ड्रग्स कौन कौन सी होते हैं, रिटोड्रीन एंड आइक्सोसुप्रीन. सालब्यूटामोल हैज आल्सो टोकोलिटिक इफेक्ट्स. सिक्स्थ, बीटा 3 एगोनिस्ट एडिपोज पे एक्ट करता है, ब्लैडर पे एक्ट करता है. एडिपोज पे लिपोलाइसिस कराता है, ब्लैडर पे टेट्रोडोर्सल मसल रिलैक्स कराता है. ड्रग कौन सी है, सी ब्यूटारामीन, है ना, इंक्रीज लिपोलाइसिस, एंटी ओबेसिटी ड्रग्स कहते हैं इनको. ये बैंड हो गई हैं अब क्योंकि ऑफ बिकॉज ऑफ कार्डियोटॉक्सिसिटी, है ना, साइड इफेक्ट कार्डियोटॉक्सिसिटी करते हैं. हाँ, मीरा बैकग्राउंड, हाँ, रिलैक्स डेट्रोसन मसल्स, ट्रीटमेंट ओवर एक्टिव ब्लैडर, यूरिनरी इनकंसिस्टेंस. अब नई नई ड्रग कौन सी, न्यू ड्रग विच इज बेबीग्रॉन. देन let's talk about indirectly acting drugs and mixed acting, है ना. indirectly we can learn from this mnemonic MAT, MAT. M से modafinil, A amphetamine group, T tyramine, which on mix में methamphetamine and ephedrine, which increase release and increase alpha and beta agonists. Whereas indirectly acting drugs are good blood brain barrier entry, है ना, and increase amine release, increase amine. इन दोनों का क्या होता है, रैपिड लॉस ऑफ इफेक्ट, डिप्लीशन ऑफ स्ट्रेस कैटेकोलामाइंस, रैपिड टॉलरेंस, टैकीपाइलेक्सिस हो सकता है इससे. इफेक्ट इन ब्रेन, इंक्रीज सिंपैथेटिक एक्टिविटी, सप्रेस एपेटाइट, डिक्रीज स्लीप एंड अटेंशन, इंक्रीज अटेंशन स्पैन, है ना. फर्स्ट हम बात करते हैं मोडाफिनिल पे, डिक्रीज स्लीप, ड्रग ऑफ चॉइस, डे टाइम स्लीपीनेस, ऑल्सो इन नेक्रोलेप्सी एंड OSA, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, है ना. इनैंशियोमर इसका है AR मोडाफिलिन. नेक्रोलेप्सी क्या होती है, नेक्रोलेप्सी 3 ड्रग्स प्रिवेंट डे टाइम स्लीपीनेस. मोडाफिनिल ड्रग ऑफ चॉइस होती है,
एंड ट्रिपोलिसांट, पिटोलिसांट, ये दोनों एक ही है ना। S3 हिस्टामिन इनवर्स एगोनिस्ट होते हैं ये। फिर आता है सोलरियम फिटोल, इंक्रीज नॉन एपिनेफ्रिन एंड डोपामिन इन ब्रेन। देन सेकंड, एम्फेटामिन ग्रुप कौन क्या करते हैं, ये ब्रेन में ज़्यादा एक्ट करते हैं बजाय पेरिफेरल ऑर्गन के। ये क्या कराते हैं, डिक्रीज एपेटाइट कराते हैं, जिससे जिससे एंटी ओबेसिटी ड्रग, एज ए एंटी ओबेसिटी ड्रग भी ले सकते हैं इसके ऊपर, ये बैंड हो चुकी है। डिक्रीज स्लीप करते हैं, नेक्रोलेप्सी ऑफ लेवल यूज करते हैं इसका। एंड इंक्रीज अटेंशन स्पैन ट्रीटमेंट ADHD अटेंशन डेफिशिएंट हाइपरकाइनेटिक डिसऑर्डर में दे सकते हैं। ड्रग ऑफ अब्यूज, इंक्रीज परफॉर्मेंस एनहांसिंग, लाइक इन स्पोर्ट्समैन डोप टेस्ट होता है जिसमें अगर पाया जाता है तो स्पोर्ट्समैन को बैन कर देते हैं। स्टूडेंट्स में वो करते हैं इसको यूज ऑन रेप पार्टी ड्रग्स एज लाइक, इसका अलग नाम लगा एक्टेसी, क्रिस्टल्स, मेंटाफामीन, MDMA। साइड इफेक्ट्स क्या है इसके, सीजर, साइकोसिस कराता है। प्रीमोलिन इसलिए बैन कर रखा है। कार्डियोटॉक्सिसिटी है, हाइपरटेंशन, अरिथमिया। फिर बात करते हैं एम्फेटामीन पॉइजनिंग की, है ना। तो इसके एम्फेटामीन पॉइजनिंग क्या है, ट्राइड साइकोसिस, हाइपरटेंशन प्लस गोल्डन यूरिन, है ना। ट्रीटमेंट क्या है, ड्रग ऑफ चॉइस इन अमोनियम क्लोराइड, फोर्स एसिडिक डायूरेसिस, क्लोरोप्रोमाजीन, एंटी साइकोटिक प्लस अल्फा ब्लॉकर्स, है ना। वैसोडाइलेशन, डिक्रीज ब्लड प्रेशर्स। फिर हम बात करते हैं अब ADHD पे, है ना, अटेंशन डेफिशिएंट हाइपरकाइनेटिक डिसऑर्डर। ट्रीटमेंट क्या है इसका, CBT, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। एंड ड्रग क्या है इसकी, ड्रग ऑफ चॉइस है मिथाइल फेनिडेट, है ना। एम्फेटामीन, डेक्स एम्फेटामीन, लिस डेक्स एम्फेटामीन, डेट्रो एम्फेटामीन, है ना। ये क्या करते हैं, अटेंशन स्पैन को इंक्रीज करते हैं और एकेडमिक परफॉर्मेंस को इंक्रीज करते हैं। ADHD प्लस टिक्स क्या करते हैं, क्लोनिडीन, गुआना फसीन एंड एटोमेक्सिटीन स्टिमुलेंट्स का इंक्रीज हाइपरकाइनेसिया विच कैन कॉज टिक्स, है ना। फोर्थ, टायरामीन फूड इंग्रेडिएंट होती हैं। नॉर्मली टायरामीन डज नॉट गेट एब्जॉर्ब फ्रॉम GIT। टायरामीन रिच फूड, MAO इनहिबिटर, चीज रिएक्शंस। व्हाट आर चीज रिएक्शन, लेट टॉक ऑन दिस, है ना। टायरामीन गेट एब्जॉर्ब, हाइपरटेंसिव क्राइसिस। ट्रीटमेंट क्या है, ड्रग ऑफ चॉइस इसकी फेंटोलामीन अल्फा ब्लॉकर्स। देन लेट फिफ्थ, एफिड्रीन। ये सारी मिक्स ड्रग्स आएंगी अब जो भी चालू होंगी, तो मिक्स ड्रग्स में आती हैं। फिफ्थ एफिड्रीन, जो है नेजल डीकंजेस्टेंट वेसोप्रेसर। ट्रीटमेंट क्या है इसका, हाइपोटेंसिव इन प्रेगनेंसी, है। और थर्ड, अस्थमा में हेल्प करता है। प्लांट कहाँ कौन से प्लांट से मिलता है, एफिड्रा वल्गैंस, है ना। इसका स्टीरियो आइसोमर कौन सा है, सूडो एफिड्रीन, लेस ब्लड ब्रेन बैरियर एंट्री एंड यूज इन नेजल डीकंजेशन। बैन कर रखी है नॉन एफिड्रीन को, क्योंकि ये ब्लड ब्रेन बैरियर में ज़्यादा एंट्री करती है, ज़्यादा एंट्री कर जाती है, तो इसकी वजह से रिस्क बढ़ जाता है हिमोरेजिक स्ट्रोक का। सिक्स्थ, मेफेंटामरीन, है ना, फेंटारमीन वेसोप्रेसर है। ट्रीटमेंट हाइपोटेंशन में देते हैं। अप्रूव्ड एंटी ओबेसिटी ड्रग्स, डिक्रीज एपेटाइट एंड एनोरेक्टिक ड्रग्स, डिक्रीज एपेटाइट एंड एनोरेक्टिक ड्रग्स, ठीक है। एंटी ओबेसिटी ड्रग्स में बात करते हैं अब। अप्रूव कौन कौन सी हैं, वेंटो मीफेंटारमीन एंड टोपिरामेट, है ना। एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स हैं ये, इंक्रीज सिंपैथेटिक एक्टिविटी, डिक्रीज एपेटाइट है। और दूसरी है बुप्रोपियोन प्लस जोनिसमाइड, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स ये भी हैं, ये एंटी डिप्रेसेंट में दी जाती हैं। ये दोनों ही वेट लॉस कराती हैं, एपेटाइट को डिक्रीज करती हैं। बुप्रोपियोन, नालट्रेक्सोन ओपियोइड एंटागोनिस्ट, है ना। इंजेक्शन किस किस के दिए जाते हैं, लिग्राग्लूटाइड, है ना, सेमाग्लूटाइड एंड ओरिलिस्टेट, सेटिलिस्टेट, है ना। GLP-1 ग्लूकागॉन लाइक पेप्टाइड, डिक्रीज एपेटाइट। ट्रीटमेंट डायबिटीज मेलाइटिस में भी दी जा सकती है ना। और बैंड कौन कौन सी हो रखी हैं, एंटी ओबेसिटी ड्रग्स, एम्फेटामीन, फेनफ्लुरामाइन एंड सी ब्यूट्रामाइन, इंक्रीज सिंपैथेटिक ड्रग एक्टिविटी एंड कार्डियोटॉक्सिक वेल्व डैमेज करते हैं ये। और भी ड्रग्स हैं जैसे कि रिमोनाबांट, CB1 इनवर्स एगोनिस्ट, सुसाइडल डिप्रेशन, कैनाबिनॉइड्स होती हैं। लोरकासरीन, F5HT2C एगोनिस्ट, डिक्रीज एपेटाइट करती हैं, इंक्रीज कैंसर करती हैं, है ना। न्यू एंटी ओबेसिटी ड्रग्स, सेमीडोरफैन ओपियोइड रिसेप्टर एगोनिस्ट,
ट्रीटमेंट ओलाजापाइन इंड्यूस्ड सेट मेलोनटाइड मेलोनिकोटिन रिसेप्टर एगोनिस्ट डिक्रीज एपिटाइट करते हैं। साइड इफेक्ट क्या है? इंक्रीज स्किन पिगमेंटेशंस, है ना। ओबेसिटी क्या करते हैं ये? इफेक्ट ऑफ कैटेकोलमाइंस ऑन बीपी एंड एचआर। ब्लड प्रेशर पे क्या करते हैं? मेन आर्टीरियल प्रेशर डिपेंड्स ऑन डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। सो हियर यू कैन सी B2 is called cause vasodilation, which cause decrease in blood pressures, and alpha 1 act on cause vasoconstriction, which increase blood pressures. ठीक है। Where is a heart rate? Direct heart rate beta 1 receptors increase BP, indirect heart rate BP opposite of BP, है ना। जो ये है तेरे A to C, डिक्रीज इन हार्ट रेट रिफ्लेक्स ब्रेडिकार्डिया, ना। इंक्रीज इन हार्ट रेट रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया। अब हम बात करते हैं कुछ ड्रग्स जो इनका इफेक्ट करते हैं बीपी पे, डायरेक्ट हार्ट रेट पे, इनडायरेक्ट हार्ट रेट पे, एंड जो उनका नेट हार्ट रेट आएगा। जो नॉन एफिनेफ्रीन है, जो ऑल रिसेप्टर एक्सेप्ट B2 पे एक्ट कर रहा है ना, वो इंक्रीज करता है ब्लड प्रेशर, है ना, विच कैन कॉज इंक्रीज इन हार्ट रेट, which can cause reflex bradycardia, decrease heart rate, है ना। सो नेट हार्ट रेट हो जाता है इसका ब्रेडिकार्डिया। फिर आते हैं हम एपिनेफ्रीन, और जो सारे रिसेप्टर वर्क करता है, ये बाइफेजिक चेंज इन बीपी कराता है, और ये इंक्रीज कराता है डायरेक्ट हार्ट रेट, इंक्रीज कराता है, एंड इनडायरेक्ट हार्ट रेट में नेग्लिजिबल इफेक्ट दिखाता है, जिसकी वजह से होता है टैकीकार्डिया। थर्ड है तेरा आइसोप्रिनालिन, जिसको ऑल्सो नोन एज प्रो प्रोटीरिनॉल, है ना। ये क्या कराता है? बीपी डिक्रीज कराता है, डायरेक्ट हार्ट रेट को इंक्रीज कराता है, इनडायरेक्ट हार्ट रेट को भी इंक्रीज कराता है। तो जिससे होता क्या है कि मैक्सिमम टैकीकार्डिया होता है। फिनाइल एपिनेफ्रीन पे बात करते हैं। अब फिनाइल एपिनेफ्रीन इन बीपी इंक्रीज कराता है, इसका कोई इफेक्ट नहीं होता डायरेक्ट हार्ट रेट पे, बट ये इनडायरेक्ट हार्ट रेट पे क्या कहते हैं, उसकी हार्ट रेट डिक्रीज करता है, जिसकी वजह से होता है ब्रेडिकार्डिया, है ना। बाइफेजिक चेंज इन बीपी क्या होता है? एपिनेफ्रीन, है ना। सो इसका है तेरा, ये तेरा बाइफेजिक, ठीक है। ये ऊपर जा रहा है, ये नीचे आ रहा, ये है तेरा बाइफेजिक चेंज इन बीपी, है ना। अल्फा ब्लॉकर्स एड्रेनलिन बीपी विल नॉट राइज, है ना, नोन एज वेसोमोटर रिवर्सल ऑफ डेल, है ना, नॉट सीन इन विद नॉन एड्रेनलिन ड्रग्स, ठीक है। ओके, थैंक यू।